जगह होता है, चाहे वो हाई सोसाइटी हो या गरीबों के बीच में हो। और अगर कहीं से भी घर की बच्ची, घर की बेटी गुम हो जाए तो दर्द माँ को उतना ही होता है जो हाई सोसाइटी की माँ का होगा या लोअर लेवल और मिडिल क्लास वुमन। So I think the subject matters at all levels. I don't think this is just a metro subject. So you know why not, right? Most challenging part, I think Nandita, our director, is doing such a splendid job. I hope that we all can stay true to her vision and add our own bits to it. I think she is dreaming really big and we hope this dream comes true. कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ भी अपनी एसपी को कुछ ऐसा कोई तकिया कलाम वगैरह दिए आपने जो मशहूर हो? देखिए उस शो के बारे में ये शो में तो एजाज से पूछो क्या बोलते हैं सर। जी नहीं। प्लेयर जो बोलते हैं शपथ में कि जब विलेन बड़ा होता है तो हीरो को और बड़ा होना पड़ता है। You say the show is adapted from a Spanish telenovel. Actually, I don't want to give out the story, but no. But see watch the Spanish show, so you will get a sense of it. And it is not taken at all. Hello, Aditi, ये show repeated episodes में खत्म होने वाला serial होगा या जो last before they actually begin the novel? So yes, this is a finite series and. I think you're going to enjoy the journey with us. Okay, so Upasana, you're from India Full. So between films, television and digital, all the screens have merged and today I'm moving to Dada very seamlessly. So that division of 10 years back where some Bollywood actors were trying to come to TV is not there anymore. And I always use this statistics to tell you the power of television screen. 6.5 crore, 65 million people viewing it. In a week on Mahadev or Diya Aur Bati, we have about 8.5 crore people seeing it just in a week. So I think everybody's realized the power of television as much as television realized the power of the screens to be. I'm sure we'll have a successful career on the other screen as much as the screen. So. Hi, this is Paras from ABP News. मेरा क्वेश्चन धरवी से है। प्रोड्यूसर ये बताइए। ये मुझसे हाँ मतलब आपको एक्टर से नहीं पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फिर मैं बाकी सबसे पूछूंगा कि आप किस तरह के प्रोड्यूसर हैं नरम दिल हैं क्योंकि आप I have a fantastic cast and they all are so experienced और इतने ज़्यादा सीनियर हैं सब कि सब अपनी जिम्मेदारी जानते हैं। Everyone is working for the show तो मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। इनको पूछ लीजिए इन्हें मुझसे क्या शिकायत है। भाग्यश्री बताएंगे कैसी प्रोड्यूसर हैं नरवी? I think we are all having a wonderful time on the sets. I think the only thing that we all have been trying to cajole her backstage is for throwing a party. And I think that would be the only issue. So इसके लिए even if I'm not there, you. मेरा सवाल राजेश्वरी से भी है। बहुत समय के बाद आप टेलीविजन पे हैं। आई थिंक आफ्टर नच बली एंड संविधान बहुत टाइम के बाद तो कुछ नर्वसनेस है वापस टेलीविजन पे आने को? आई थिंक आप ये आपका फर्स्ट शो होगा ऐसे कई सालों में। 7 साल तो हो ही गए हैं। नर्वसनेस नहीं है, एक्साइटमेंट जरूर है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कुछ भी काम करते हैं वो बेसिक लेवल पे बहुत अच्छा हो। सबसे पहले तो हमारे जो मेकर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो कहानी लेकर आए हैं, जो स्क्रिप्ट लेकर आए हैं, हमारे जो राइटर हैं रघुवीर शेखावत, उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। तो जब आपका बेसिक बहुत सही होना तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो एट द मोमेंट आई एम मोर एक्साइटेड देन नर्वस। Trying to ask the question for the last time. Mr. Thakur, my question is for you. Like, as you said that we all know that you are number 3. के गुस्सा भी करते हैं तो आप किस तरह की प्रोड्यूसर हैं ये बताइए। ये मुझसे हाँ मतलब आपको एक्टर से नहीं पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फिर मैं बाकी सबसे पूछूंगा कि आप किस तरह की प्रोड्यूसर हैं। नरम दिल हैं क्योंकि आपके ऊपर बीत चुकी है इतने साल तो नहीं I have a fantastic cast and they all are so experienced और इतने ज़्यादा सीनियर हैं सब
कि सब अपनी जिम्मेदारी जानते हैं, एवरीवन इज वर्किंग फॉर द शो, तो मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। इनको पूछ लीजिए कि मुझसे क्या शिकायत है। आगिशी बताएंगी कैसी प्रोड्यूसर है? I think we are all having a wonderful time on the sets. I think the only thing that we all have been trying to cajole her backstage is for throwing a party. I think that would be the only issue. So इसके लिए even if maybe for the actors is one thing, for the channel to deal with her is another thing. So Yuvraj will give you insights into that. मेरा सवाल राजेश्वरी से भी है। Can we take one last question? मेरा सवाल राजेश्वरी से भी है। बहुत समय के बाद आप टेलीविजन पे हैं, आई थिंक आफ्टर नच बली एंड संविधान, बहुत टाइम के बाद, तो कुछ नर्वसनेस है वापस टेलीविजन पे आने को? आई थिंक अब ये आपका फर्स्ट शो होगा एज अ सीरियल या सेकंड शो होगा? नहीं, तीसरा होगा शायद। कई सालों में, हाँ 7 साल तो हो ही गए हैं। नर्वसनेस नहीं है, एक्साइटमेंट जरूर है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कुछ भी काम करते हैं वो बेसिक लेवल पे बहुत अच्छा हो। सबसे पहले तो हमारे जो मेकर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो कहानी लेकर आए हैं, जो स्क्रिप्ट लेकर आए हैं, हमारे जो राइटर हैं रघुवीर शेखावत, उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। तो जब आपका बेसिक बहुत सही होना तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो एट द मोमेंट आई एम मोर एक्साइटेड देन नर्वस। Mr. Thakur, my question is for you. Like, as you said that we all know that you are number 3 like for the last couple of weeks. So any particular strategies you are going to follow now to be on that position? And my second question is, why Nalini is missing today? Is there any strategy you are like? What are the reason for that? वो पूरे शो से मिसिंग है, तो उसमें हमने no reason. We will get her to you at the right time. But the first question. अगर सब स्ट्रैटेजी होता तो नंबर 1 होते। We don't have all the answers, but yes, it puts a lot of pressure on us. And for me, it's not about the rank as much as the joy of coming into the top bracket without doing other tourist aspect. So strategy कुछ नहीं है, कुछ नए लोग, कुछ पुराने लोग, वही टीम है, one big show, and I can tell you इसके बाद the next one from Ekta is equally, controversial, and then we have two very big shows lined up till October. So from Nauta Trisha to Diwali. Hopefully it will be Diwali for life. We're now done with. आप तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछ ही नहीं रहे हो। मिस्टर वेद वैदिक के बारे में पूछ ही नहीं रहे हो आप लोग। कौन है वो पता है आपको? सबसे पहले क्वेश्चन चालू करें। लाइव होके दिख रहा है ना पीछे? दिखना चाहिए। हाँ, ये तो मुझे चेक नहीं मिलेगा। हाँ बोलो। सबसे पहले सब लोग यही पूछते हैं। मेरा नाम है एसीपी कबीर। पूरा नाम मुझे भी नहीं पता, नहीं बता। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग किरदार के बारे में जानना चाहिए। मेरा किरदार जो है गौरव स्वाइकर, त्रिशा स्वाइकर का अंकल है और पॉजिटिव कैरेक्टर, इज़ अ नाइस कैरेक्टर। अपने भाई से प्यार करता है, अपनी मम्मी से प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। इज़ अ नाइस गाय। मैं इनकी वाइफ का रोल निभा रही हूँ। कैरेक्टर का नाम है सोनाली स्वाइकर। बहुत ही बबली और हैप्पी गो लकी, इन लव विद हर हस्बैंड, इन लव विद हर सन। लव बर्ड्स तो हम हैं ही, पूरे परिवार के हम ही हैं जो लव बर्ड्स हैं, जिन पे शादी की जो समय है उसकी छाप नहीं लगी अभी तक। और बस सब बच्चों से प्यार है और हैप्पी गो लकी। और एक इनके कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूँगा। इनका जो कैरेक्टर बहुत फनी भी है। नहीं, वो सस्पेंस नहीं है। वो बहुत फनी कैरेक्टर है। वो कुछ भी आड़ा तिरछा सवाल किसी भी टाइम पे करती है तो ऑडियंस को कई बार लगता है मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देती है। मैं सोचती नहीं हूँ। ये बोलना चाहती हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मतलब अचानक से कोई भी टॉपिक चल रहा होगा और ये बोलेगी आपको मेरी यही अदा पसंद आई थी ना, इसी से प्यार हुआ था ना। नहीं, शिकायत नहीं कर रहा। नहीं, शिकायत नहीं है। नहीं, मानना मत। शिकायत तो मुझे करनी चाहिए, आपको नहीं लगता? नहीं, शिकायत नहीं है। ये इनकी क्यूटनेस है और ये ओके।
ये इनकी क्यूटनेस है जो कि मुझे बहुत पसंद है। क्या कह सकती हूँ, कहाँ थे नहीं, आप अब तक? you're cute. Very cute character. Thank you. कल परसों तक तो नहीं आ रही है वो, परसों भी नहीं आ रही है ना। लास्ट एपिसोड में आएगी। आई थिंक एक बिफोर दैट, much before that, and आनी चाहिए। And ऑन अ सीरियस नोट, अगर हमें पता होता तो हम जाने नहीं देते। और अगर पता चल जाए तो ये शो शुरू ही ना हो। सो पूरी कहानी यही है कि त्रिशा कहाँ गई मतलब है, जब रामायण में क्या राम जी हुआ वापस है। आ जाएंगे तो फिर और एसीपी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरा परिवार टेंस शक के दायरे में है। है। एक क्राइसिस है हमारे फैमिली के लिए, और हमें ढूंढना है कहाँ है हमारी बच्ची और क्या हुआ है उसे। आप लोग दुआ कीजिए हमारी बच्ची हमें जल्दी मिल जाए। और त्रिशा तुम जहाँ कहीं भी हो लौट आओ। प्लीज जल्दी लौटो। लौट आओ त्रिशा, लेट्स से टुगेदर। लौट आओ त्रिशा। आई होप नॉट, आई होप कि ऐसा कुछ ना हो। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि कहीं चाचा का तो हाथ नहीं है, तो मैंने बोला चाचा का हाथ तो नहीं होना चाहिए वरना चाची बड़ी गुस्सा हो जाएगी। अभी जो उनकी मम्मी है जो अमृता स्वाइका हैं, भाग्यश्री जी, हाँ, उन्हें शक हो रहा है। क्या होता है, आपका घर में कुछ गुम हो जाता है, आपकी बच्ची गुम हो गई है, तो शक ऑब्वियसली शक सब पे जाएगा या किसी पे भी जाएगा। इवन माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से शक के दायरे में हम सभी हैं, लेकिन हम लोग ऐसा किसी पर शक नहीं कर रहे हैं। हम लोग को ये लग रहा है शायद ये बाहर वाले का हाथ है, और हम चाहते हैं कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स के लिए रुके हैं जो एसीपी। बट हम नहीं शक कर रहे किसी पे, लाइक आवर कैरेक्टर्स आर नॉट डाउटिंग एनीवन, बट यस। आपको किसी ने नहीं कहा कि आपके कैरेक्टर पे डाउट हो रहा है? नहीं, मतलब हम लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, मतलब भाभी तो कर रही है ना, भाभी कर रही है, भाभी को गुस्सा आ रहा है ना, भाभी को तो गुस्सा आ रहा है, उनकी बच्ची गुम गई है तो उनको तो गुस्सा आएगा ही। दर्शकों को कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बोल्ड शो है, और अभी लाइफ ओके में आ रहा है। बहुत ही प्यारा चैनल है जो हमेशा आप लोगों के लिए बहुत डिफरेंट शोज़ लेके आता है, तो प्लीज़ देखते रहिए। और देखते रहिए मतलब देखना शुरू कीजिएगा 21 जुलाई से। लॉट ऑफ त्रिशा रात को 10 बजे, मंडे टू फ्राइडे, ओनली ऑन लाइफ ओके। थैंक यू। लावण्या स्वाइका अग्रवाल जो एक बिजनेस वुमन है, सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल मैरिज, सक्सेसफुल मदर, सक्सेसफुल एवरीथिंग। तो ज़िंदगी में इतनी सक्सेस के लिए बहुत डिसिप्लिन नहीं है, ऑब्वियसली बहुत मेहनती है, लेकिन जब आप लाइफ में इतना कुछ बैलेंस करके चलते हैं तो कहीं जा कर के आप नहीं कर पाते, और फिर शायद कुछ डिसीजंस ऐसे हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में हो जाती हैं जिसमें आप अपनी राह से थोड़ा हट के चलने लगते हैं, सही या गलत की बात नहीं करें, तो ज़िंदगी में आपको कुछ नए चैलेंजेस आ जाते हैं। त्रिशा के गुम होने पे लावण्या जो कि बेटी है त्रिशा की बुआ लगती है, उन पर भी सवाल उठते हैं, उनके रिश्ते पर भी, वो भी शक के दायरे में आती है, सबके सब आते हैं। तब रिश्तों पर क्या असर होता है, जो परिवार इकट्ठा है हमेशा हर चीज़ को उन्होंने साथ में फेस किया है, जब वो ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं तो फिर क्या बीतती है पूरे परिवार में, रिश्तों पर क्या असर होता है। और ऐसे वक्त में इंसान अपने आप को पहले बचाता है या किसको पहले बचाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कलर इन दिस कैरेक्टर। ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पॉजिटिव है, ये भी नहीं कहूँगी ये नेगेटिव है, ये ग्रे भी नहीं है। जब कोई औरत इतने सारे रोल्स करती है, वो सिर्फ कोई एक चीज़ नहीं हो सकती, ऑप्शंस ही ऑप्शन है, रिश्ते इतने हैं, उसके डायनामिक्स इतने हैं, तो इट्स अ वेरी कलरफुल कैरेक्टर, ऑल इमोशंस दैट अ वुमन कैन गो थ्रू। काफ़ी बोल्ड है क्योंकि कुछ रिश्तों को क्वेश्चन किया गया। हर रिश्ते के अपने दायरे होते हैं, अपनी मर्यादा होती है, और कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो उसको अब लांघ लेते हैं, उसमें एक कदम भी आप बाहर लगाओ तो फिर कुछ सवाल उठते हैं, बवाल भी खड़ा होता है। तो हाँ, बोल्ड है, लेकिन इसको बोल्ड कह करके नकारा नहीं जा सकता कि ऐसा है, ऐसा थोड़ी होता है, क्यों।
आप काफ़ी टाइम बाद आपने कहूँगी काफ़ी सालों बाद आपने वापसी टेलीविज़न पे, हाँ, छोटे पर्दे पर, हाँ, 7 साल तो मुझे लगता है लास्ट काउंट पे हो गया होगा। एक सिंपल रीज़न था कि टेलीविज़न करना आसान काम नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत मेहनत का काम है, और मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है, तो टेलीविज़न करना फिरना वो नाइंसाफ़ी है अपने काम के साथ भी और उसके साथ भी। तो मैंने कुछ बीच में 3-4 फिल्में कर ली जो बहुत खुशी की, जो बहुत अच्छी फिल्में थी। वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट आई डिड इन बिटवीन। अब मुझे लगा कि ये जो भैरवी, क्योंकि दोस्त भी है और एक अच्छी कलाकार है, तो व्हेन शी नरेटेड मी स्टोरी, ये तो है। फिर भैरवी ने बड़ी अच्छी तरह कन्विंस भी किया मुझे, हाँ हो जाएगा, डोंट वरी, इतना करेंगे, ऐसे करेंगे, बट वट एवर। आई मीन बेसिकली देखिए, एवरी एक्टर गेट्स एक्साइटेड विद गुड वर्क, फिर मना नहीं किया जाता, चाह कर भी मना नहीं होता। तो ये बहुत एक्साइटिंग लगा मुझे, कहानी बहुत अच्छी लगी। जो राइटर हैं हमारे रघुवीर शेखावत, वो बहुत अच्छे राइटर हैं, हमारे डायरेक्टर अनिता मेहरा, बहुत सेंसिटिव, बहुत सेंसिबल डायरेक्टर। तो जब आप काम करो और जब साथ आप लोग बैठते हैं, तो आप, इफ़ यू आर ऑल ऑन सेम पेज, आप सब एक ही दिशा में चल रहे हैं, यू नो कि देयर इज समथिंग, देयर सम मैजिक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, तो वो एक्साइटमेंट होती है, दैट टेक्स यू टू वर्क एवरी मॉर्निंग। राजेश्वरी भी यहाँ से काफ़ी बड़े पर्दे से यहाँ पर आई है, तो इन सारे कलाकारों के साथ देखिए, गुड प्रोफेशनल्स आर गुड प्रोफेशनल्स एवरीवेयर। फिर हम ये नहीं सोचते कि अरे आज हम रंगमंच पर चढ़ रहे हैं तो हम ऐसे बिहेव करेंगे, हम आज बड़ी फिल्म की शूटिंग करें तो ऐसे करेंगे, हम एक बड़ी सीरियल की शूटिंग करें तो ऐसे करेंगे। वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, वी ऑल हैव बीन अराउंड फॉर टू लॉन्ग, बीन देयर, सीन दैट, डन दैट। सो जब हम साथ में काम करते हैं, वी ऑल आर हियर टू एन्जॉय व्हाट वी आर डूइंग, वी डू एन्जॉय, और हमेशा माहौल ऐसे ही रहता है सेट पे, which is conducive to growth, which is conducive to excitement, and yes, we are all leading a good life and life okay. दर्शकों को क्या कहना चाहिए? बड़ी ईमानदारी से शो बनाया जा रहा है, प्रोड्यूसर ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की कोशिश में, डायरेक्टर भी पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, एक्टर्स भी, पूरी टीम, हमारे कैमरामैन, सब के सब